Question number 37, exercise number 2.4. And as you know, we have done with question number 1 to question number 36. And in this exercise, we are talking about slope intercept form. We have to determine the equations, rewrite the equations into slope intercept form. Yes, sir. As you know, what is slope intercept form? Slope intercept form is y is equal to Y is equals to mx plus k. Y is equal to mx plus k. Here, in question number 1 to question number 36, we have done with one point slope formula. As you know, what is one point slope formula? Y minus y1 is equal to m into x minus x1. m into x minus x1. तो हमने ये क्वेश्चन डिटेल में किए हैं. Our objective is to rewrite the equations into slope intercept form, and we have I think almost done with 100 plus questions of slope intercept form, and we have extensively explored or practiced the slope intercept form. And slope intercept form is y is equal to mx plus k. After that, we have one point as well as slope. Then we have to convert those questions into slope intercept form by using one point slope formula. And what is one point slope formula? Y minus y1 is equal to m into x minus x1. Our purpose is we need to determine into slope intercept form y is equal to mx plus k. Simply we will be converting the equation into this form by using, we keep the y into left side of the equation and rest of the expression will be moved towards right side of the equations, and we can simplify, then we can extract our slope intercept form. So question number 1 to question number 37, as we look in our book, question number 1 to 5, there we are having slope as well as y-intercept, and we can use one point slope formula, and we have discussed one point slope formula. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. M into x minus x1. If we have 2 points, like point 1, point 2, we are having the value of x1, and y1 we are also having the value of x2 and y2, and we can determine the slope. After determining the slope, we can place any of the point into this formula, then we can simplify, and we can simplify the equation into slope intercept form. I think we all have done with these questions. Today we are having the practical or real life problems, which is starting from question number 37 to question number 42 or 43. So we read question number 37. Who wanna read? You wanna read? Okay, read it. Question number 37 is depreciation. It's the case of depreciation. Okay. As you know, just focus on the word. Depreciation. One is depreciation, second one is appreciation. What does it mean? Depreciation का क्या मतलब है बच्चों? कम होना? It means कि इनपुट के बढ़ने से आउटपुट क्या है? कम होता है. इसका मतलब है, while we are talking about depreciation, it means we are talking about the value of something is going to decrease. So here is the case of depreciation. टाइम बढ़ा, वैल्यू कम हुई. इज इट डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन? ये डायरेक्ट है या इनवर्स है? टाइम बढ़ा, इनपुट बढ़ा, आउटपुट कम हुई, वैल्यू कम हुई, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन? इट्स इनवर्स रिलेशन. इफ देयर इज इनवर्स रिलेशन, तो व्हाट इज स्लोप? पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप. उसमें क्या, कौन सी स्लोप होगी बच्चों? नेगेटिव स्लोप. तो m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी. तो डेप्रिसिएशन के वर्ड में हमें इट्स अंडरस्टूड. डेप्रिसिएशन में क्या है बच्चों?
अंडरस्टूड है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। x के बढ़ने से या इनपुट के बढ़ने से, टाइम के बढ़ने से आउटपुट क्या होगा, कम होगा। जो आपका वैल्यू ऑफ मशीन जो है डेप्रिसिएशन के केस है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, तो वैल्यू इज गोइंग टू डिक्लाइन। तो एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ machine or value of some asset is going to decline, that is called depreciation. So what's case? Read it. The value of a machine is expected to decrease at the linear. The value of machine is expected to decrease. What is decrease or increase? Decrease. It's decrease. Yes, What sir. is decrease? So we can say, we can easily understand. तो slope positive होगी negative? So negative. पहला पार्ट, पहला एक इंडिकेशन, आप सिग्नल क्या है कि देयर इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिक्रीज। एंड इट्स आल्सो मेंशन इन द बुक दैट द वैल्यू ऑफ मशीन इज गोइंग टू डिक्रीज विद अ लीनियर रेट, विद अ लीनियर फंक्शन और लीनियर रेट। आगे बढ़े बच्चे। Two data points indicate that the value of the machine at t is equals to 0. Time t is equal to 0. 0. Two data points, t is 0 है, what is the value of machine? T is equal to 0, sir. t is equal to 0। आगे बढ़े बच्चे। time of purchase is $18,000 and When time is 0, so what is value? 18,000. 80,000. What is value? 18,000. 80,000। पहला पॉइंट क्लियर? तो Yes, इसमें sir. भी क्वेश्चन में वाज़ेह है कि टू डेटा पॉइंट्स, व्हेन टाइम इज 0, 0. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ मशीन? 18,000. 80,000। Yes, sir. बात समझे? Yes, sir. तो व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? And its value in 1 year will equal सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ t? 1 ईयर। 1. It's 14,500. तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर इज 14,500। 14,500। 500. डू वी हैव 2 पॉइंट्स? Yes, sir. If we have 2 points, can we find the slope? Yes, sir. Yes, sir. If we have 2 points, can we find the slope? Yes, sir. आगे बढ़े बच्चे। Determine the slope intercept equation v is equals to Part A. Determine the slope intercept form. Equation. V is equal to mt plus k. V is equal to mt plus k. K. हमारा मकसद क्या है? We need to determine the slope intercept form. What is slope intercept form? By using one point slope formula. What is formula? Y minus Y 1. minus y1 y1 m is equal to m into x minus x1. X1. y1 and x1 की वैल्यू है। We can use any point, but we are not having the value of anything. Point तो कोई भी यूज हो सकता है। x1 में, y1 में कोई भी पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। But before we need m, हमें क्या चाहिए? स्लोप Slope चाहिए। चाहिए। What is the slope formula? m is equal to m is equals to y2 y2 minus Y1. y1 divided by X2 minus x2 X1. minus Yes. x1. So what is this? x1. What is this? x2 Y. y1. Y1. Here is x2 y2 X2. Y2. Can we put these values in this formula? What is slope y2? y2 is Y2 is 14. 14,500 minus 18,000 18,000 divided by 1 x2 1 1 minus and 0. 0. What is m? इनका डिफरेंस कितना है बच्चों? Their difference is minus 3,500. Yes, sir. Is it? Minus 3,500. So इसको अगर हम डिवाइड करें by 1 तो आंसर इज इक्वल टू minus 3,500. तो देखिए बच्चों, शुरू में भी हमें क्लियर हो गया था डेप्रिसिएशन का केस है तो स्लोप विल बी नेगेटिव। स्लोप विल बी Negative. तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव? Negative. Negative है sir. अगर स्टूडेंट का आंसर पॉजिटिव आ जाता तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप उन्होंने सही फाइंड नहीं की। बात क्लियर? Yes, sir. अच्छा, डू वी हैव वैल्यू ऑफ स्लोप? Point given? Can we utilize one point slope formula? Yes, sir. What is one point slope formula? Y minus y1 is equal to m x minus m into x minus x minus x1. M into x minus X minus X1. x1. So we can place the value of y1 and x1. Look at the first point. We can put we can utilize any other point. Suppose हम first point को लेते हैं. What is the value of y1?
1800 18,000. What is slope? slope is Slope क्या find किया बेटे? 3500. X minus x1 is 0. 0. Yes, sir. x1 is Zero. 0. So can we simplify it? So y minus 18,000 is equal to minus 30 minus 3,500 x into X. x. Minus 3,500 into X. X. Minus 35 multiplied with 0 is equal to 0. 0. So we are required slope intercept form. What is slope intercept form? y is equals to Y is equal to, we need y left side and rest of the component will be shifted to right Right side side. of the equation. So y is equal to minus 3,500 x plus plus 18,000. 1000. Is it slope intercept form? Yes, sir. So look at your book. y की जगह क्या गिवन है? the value of y की जगह v गिवन है. given हमारे पास x की जगह क्या गिवन है? K. K. तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करें तो आपने जो वेरिएबल के जो सिंबल्स हैं, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू कैन प्लेस दोस पर्टिकुलर सिंबल्स. y की जगह क्या पुट करना है? v. v और क्यों पुट करना है? बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन कि v इज इक्वल टू स्लोप क्या आ गया? माइनस 3,500. x की जगह क्या आएगा? K. x की जगह t है t. x की जगह क्या आएगा? t. और k इज कांस्टेंट. k इज Constant. and this is this required form. Part A में क्या था? We are required to determine the slope intercept form. We are required to determine the slope intercept form. We can figure. This is good. सर हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं ना, मतलब हमारी मर्जी है कि हम वहाँ से वैल्यूज लें यहाँ से. कौन सी वैल्यूज? सर 0 और 1800 लिए ना, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हम हो. 14 Any point. You can take any point. ये हमने क्योंकि डिटेल में किए हुए भी हैं, किसी भी पॉइंट को यूज करें तो we will be getting same answer. What is part B? part B. जी. Interpret the meaning of slope and v-intercept. Interpret the meaning of slope. What is slope here? Slope is 35,000 minus 35,000. 1,100. 100. Minus 3,500. 100. Interpret the meaning of slope and v-intercept. V. स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज. इसका मतलब ये है कि एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन इंक्रीज डिक्रीज. Decrease. कितने से? 3,500. 3,500 से. एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 35. 3500. 3,500. या हम कह सकते हैं कि टाइम 1 साल बढ़ा, वैल्यू 3,500 से कम हुई. किसकी? मशीन. The value of machine is going to decrease is decreased by 3,500 every year. 3,500 every year. Any confusion? No, sir. And v-intercept दूसरा फाइंड करना है. Interpret the meaning of v-intercept. V-intercept is always equal to y-intercept is always equal to y-intercept is always equal to constant. पढ़ा है ना? Yes, sir. याद नहीं किया आप लोगों ने? Y-intercept is always Y-intercept is always equal to constant. Constant. तो y की जगह क्या गिवन है? v. y Yes, की sir. जगह क्या गिवन है? v. V. अगर v की v इंटरसेप्ट फाइंड करना है या y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? y पे x क्या होगा? 0. 0. अगर v इंटरसेप्ट फाइंड करना है x की जगह t की जगह क्या आएगा? 0. अगर ये 0 हो जाएगा तो ये किसके इक्वल बचेगा? बल्कि 18,000. किसके इक्वल बचेगा? 18,000. 18,000. तो मैंने एक स्टेटमेंट बताई है कि ऑलवेज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट है? It's 18. 18. चलो मैं सेकंड पार्ट को करता हूँ. एट v इंटरसेप्ट क्या चीज 0 होगी? At v-intercept t is equals to 0. t is equal to 0. So v is equal to minus 3,500 into 0. 0. Minus 3,500 into Zero. 0 plus 18,000 plus 18,000. So v is equal to 80. It's equal to 0. Yes, sir. So what's left? 18,000. Any confusion? No, sir. तो v इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे? v इंटरसेप्ट मींस y इंटरसेप्ट. हाउ वी राइट? जी कैसे लिखेंगे आप बताएं? 0. 0. वेरी गुड. एंड 18,000. 18,000. 0 किस चीज की वैल्यू है? t की या v की? 0 t. T की सर. v कितना है? V 18,000. हमें इंटरप्रेट करना है. हमें क्या करना है? Interpret.
When time is 0, 0. the value of machine is 18,000. टाइम 0 कब था? वो Time- मेंशन है at the time of purchase. मैं आज कोई चीज लेता हूँ फॉर एग्जांपल, आज मैं अभी कोई चीज परचेज करता हूँ, 0 टाइम. Yes, sir. आफ्टर 1 ईयर होगा, आफ्टर 2 इयर्स उसका टाइम कितना हो जाएगा? 2 इयर्स. तो इसमें टाइम 0 कब है? जब परचेज परचेज की. हमने मशीन अभी परचेज की, तो उस परचेज करने के बाद तो उसमें टाइम क्या होगा? 0. हम क्या कहते हैं? एट टाइम ऑफ परचेज टाइम इज इक्वल टू 0. Zero. द वैल्यू ऑफ मशीन इज 18. 18,000. बात समझ में? Yes, sir. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट सी क्या है बच्चों? व्हाट इज पार्ट सी? Part C, determine the t-intercept and the interpret its meaning. डिटरमाइन द टी इंटरसेप्ट. व्हाट इज इक्वेशन? पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू -3500 t Plus प्लस 18,000. 18,000. फाइंड क्या करना है बच्चों? Determine the t-intercept. डिटरमाइन द टी इंटरसेप्ट. टी इंटरसेप्ट में v क्या होगा? Sir, वो 0 है. x इंटरसेप्ट का फाइंड करना है ना. Yes, sir. x पे y क्या होता है? 0. 0. अगर y फाइंड करना है x क्या होता है? 0. 0. अब हमने t फाइंड करना है, क्या लिखेंगे? एट t इंटरसेप्ट Intercept. v is equal to 0. So v is equal to 0 minus 3500 t plus 18,000. 18. Is it first degree equation? Yes, sir, ये constant एक side. First degree equation है या नहीं? Yes, sir. How we'll be able to know its first degree equation? Because the power of variable is One. 1. What is variable? t. T. वेरिएबल इज t. इसकी पावर 1 है, तो फिर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? शिफ्ट द वेरिएबल वन साइड कांस्टेंट अदर साइड. शिफ्ट द वेरिएबल वन साइड कांस्टेंट अदर साइड. तो प्लस 3500t इज इक्वल टू 80,000 इज इक्वल टू 80,000. सो t इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 3500 divided by 3500. So its answer is, I think, 5.14. कैलकुलेटर है हम लोगों के पास या नहीं? We don't have calculator. Okay. So t is equal to, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं इट्स 5.14. टाइम किस में गिवन है? डेज में है, मंथ में है, क्वार्टर में है, ईयर में है? Sir, year. ईयर में है, तो इट्स ईयर्स. तो टी इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे? मुझे कोई बता दे. हाउ वी कैन राइट द टी इंटरसेप्ट? x पहले आता है, y बाद में. x की वैल्यू कितनी है? मींस t की वैल्यू 5.14. 14 एंड 0. 0. ये किसकी वैल्यू? t की या v की? T. व्हाट्स दिस? V. तो कैसे कह सकते हैं? आफ्टर 5.14 the value of machine 0. will be 0. Interpretation clear? Yes, B sir. intercept clear? Yes, sir. T intercept okay? Yes, So, sir. that is the approach to solve these types of questions. That was a real life problem. Depreciation का केस था, हमने उसको क्या किया है? सिंप्लीफाई किया है और उसमें 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला को यूज करते हुए हमने पहले इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट किया है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. पार्ट ए था. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले स्लोप हमने फाइंड की, फिर किसी एक पॉइंट को हमने उसकी वैल्यू को यूज किया है 1 पॉइंट स्लोप फार्मूले में. सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन है कि इन पार्ट बी वी आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप एज वेल एज बी इंटरसेप्ट. तो इंटरप्रेट मीनिंग ऑफ स्लोप गिवन थी दैट इज -3500. तो इसकी इंटरप्रिटेशन हमने क्या की? एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन इज डिक्रीज बाय 3500 डॉलर जो भी है यूनिट जो भी. फिर हमें v इंटरसेप्ट फाइंड करना था. एज यू नो एट v इंटरसेप्ट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0. तो हमने जीरोस की वैल्यू पुट की एंड वी हैव सिंप्लीफाइड कि v इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 एंड 18,000. एज यू नो ऑलवेज v इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट. y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट. बड़ी डिटेल में हमने ये क्वेश्चन किया. तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी? एट टाइम ऑफ परचेज t is equal to 0, then we can find the value of, then the value of machine is 18,000, then the value of machine is 18,000. कोई confusion? No, This is sir. clear.
Okay. sir. Part C, we are required to determine the t-intercept and its interpretation. So at t-intercept the value of v is equal to 0. हमने इस पे बहुत डिटेल में क्वेश्चन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर हमने 0 पुट किया और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हमारा पहला चैप्टर ही फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में था, बल्कि पहली क्लास ही, तो उसमें हमने डिटेल में क्वेश्चन किए थे, हाउ टू सॉल्व फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, व्हाट इज फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन. वी सिंपली shift the constant one side and variable on the other side and simplify the equation, then we can find the value of variable. तो simplify करने के बाद the value of t is 5.14. तो 14 क्या है, टाइम है, t intercept क्या है, 5.14 and 0. What is 0? 0 That is the value of v. V. अब इसकी interpretation क्या है? After 5.14 years, the value of machine is equal to 0. The value of machine is equal to 0. That was applied nature case. So here is the utilization of in a real life problem. तो हमने real life problem को एक organization या जो corporate sector का एक question था, एक statement given थी, उसको हमने mathematical language में answer किया है, and then we can make the rational decision. कोई confusion? No, sir. Same as question number 38, that is also a case of depreciation. Question number 38 is a case of depreciation. उसमें भी हमने क्या फाइंड किया बच्चों? Depreciation फाइंड करनी है, तो उसमें स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर नेगेटिव. क्यों? Depreciation का मतलब क्या है? कम होना. क्या चीज कम होगी? वैल्यू. किसी भी एसेट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम होगी. Due to with the increase of time. With the increase of time. या फिर टाइम बढ़ता जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. वैल्यू ऑफ एसेट क्या होती जाएगी? कम होती. पढ़े बच्चे क्वेश्चन पढ़े. क्वेश्चन नंबर 38. The value of machine is expected to decrease at the linear rate over the time. Okay. Two data points indicate the value of machine 1 year. 1 year. Time कितना? 1 year. 1 year. Value is the data of purchase will be 84,000. तो इधर v की जगह क्या आएगा? 84,000. उसके बाद क्या है? And its value after the 5 year is expected to t की जगह क्या है? पहला पॉइंट 5 and value is 36,000. 36,000. ये फिर साल हो जाएगा ना आगे? Yes sir. सेम अप्रोच. पहले क्या फाइंड करेंगे? m find करेंगे. M फाइंड करने के बाद 1 पॉइंट स्लो फार्मूले को यूज करते हुए, किसको? 1 point स्लो फार्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? उसको रीराइट करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. पार्ट बी में आई थिंक हमने उसको स्लोप को इंटरप्रेट करना है और वी इंटरसेप्ट को इंटरप्रेट करना है. एंड सेम विद पार्ट सी कि हमने उसमें टी इंटरसेप्ट को इंटरप्रेट करना है और उसको फाइंड करना है. एनी कंफ्यूजन? No, sir. क्लियर? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें देखते हैं कि क्या गिवन है. जी बड़े पढ़े. If C equal degree Celsius and F equal degree Fahrenheit, assume the relationship between the two temperature scales is linear and is being graphed with F on the vertical axis. Being graphed, F is on the vertical axis. Y axis पे क्या आया? अच्छा पहले केस को समझते हैं. It's case of temperature scales. There are different types of scales और उन्होंने इसमें कितने यूज किए? 2. कौन से? सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल. सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल, तो दोनों को यूज किया है और ये इंडिकेट कर दिया गया है. क्वेश्चन में क्या बताया है कि y एक्सिस पे क्या होना चाहिए? वर्टिकल पे f होना चाहिए, फारेनहाइट होना चाहिए. इज इट गिवन इन द क्वेश्चन Yes. कि y एक्सिस पे हमने किसको ड्रा करना है स्टूडेंट्स? Fahrenheit. फारेनहाइट को. x एक्सिस पे क्या आएगा बच्चों? Celsius. सेल्सियस स्केल. क्लियर? आगे चलेंगे. नेक्स्ट पढ़ें. Two data points on the line relating Celsius and Fahrenheit are. अच्छा सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर, आगे ब्रैकेट में 2 पॉइंट्स गिवन है. अच्छा सोचें जरा इसको. x पहले होता है, y पहले होता है? इधर c पहले है, f पहले है? Sir, the C पहले. तो x एक्सिस पे क्या आएगा? C. y एक्सिस पे क्या आएगा? F. F. अगर वर्टिकल में पहले अगर स्टेटमेंट में ना ही बताते कि वर्टिकल पे किसको प्लेस करना है, तो वी हैव द सेंस, हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
कि जो पहली वैल्यू है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, x X को। दूसरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, y। Y. तो हम y एक्सिस पे f को ड्रा करते हैं और x एक्सिस पे सेल्सियस को ड्रा। बात क्लियर? Yes. व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? 541 5 and 41 41 25 25, 77. 25 and 77. 77 आगे बढ़े बेटे। Using these points, determine the slope-intercept equation which allow the अच्छा, transformation पार्ट ए में स्लोप इंटरसेप्ट form, फॉर्म, आगे क्या है बेटे? which allow the transformation from the Celsius temperature to equivalent Fahrenheit temperature. Identify and interpret the meaning of slope ठीक है, and see पहले में हमने क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डिटरमाइन करना। थोड़ा सा समझ लें कि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव। ये बुक में भी मेंशन था, वहाँ पे था इंक्रीजिंग का, अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज का वर्ड था। चले एनीवेज, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले इनपुट 5 है, Yes, sir. पहले इनपुट कितना है, 5। 5. आउटपुट कितना है, 41. इनपुट बड़ा है, 5 से कितना हो गया, 25. और फिर आउटपुट 41 से कितना हो गया, 77. इनपुट बड़ा, output. आउटपुट बड़ा। व्हाट इज रिलेशन, Sir, positive. पॉजिटिव। तो स्लोप इज Positive. Positive. कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें। बिहेवियर ऑफ डाटा या पॉइंट्स जो गिवन है आपको, उसके ऊपर इनपुट की वैल्यू और आउटपुट के जो डाटा की वैल्यूज है, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि टू वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव। ये समझ आया पॉइंट? आप इनपुट इज 45, आउटपुट इज 41. इनपुट को बढ़ा दिया 5 से, 25 पे और आउटपुट बढ़ा है कम हुआ है 41 से, बड़ा है. बड़ा 41 है। से 70. इनपुट बढ़ा, x बढ़ा, y बढ़ा, कौन सी स्लोप, Positive. कौन सी स्लोप, Positive. स्लोप। कंसेप्ट क्लियर? Yes, तो ये sir. पॉइंट से भी देख लीजिएगा। अच्छा, मैं अगर ऊपर वाले केस को देखो, इनपुट कितना है, 1. आउटपुट कितना है, 84,000. इनपुट बढ़ा है Yes, sir. Yes, sir. 5, आउटपुट क्या हुआ है, Come. Come. तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। Negative. क्योंकि इनपुट के बढ़ने से आउटपुट कम हो, तो इनवर्स रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन, Inverse. इनवर्स। तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। Negative. अगर इनपुट के बढ़ने से आउटपुट भी बड़ा है, इनपुट के बढ़ने से आउटपुट भी बड़ा है, देयर इज पॉजिटिव। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि स्लोप विल बी पॉजिटिव। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द स्लोप, m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. x1। स्लोप फाइंड करने के बाद हम 1 पॉइंट स्लोप फार्मूले को यूज करेंगे। ओके बच्चों, Yes, 1 sir. पॉइंट स्लोप फार्मूले को यूज करके वी कैन सिंप्लीफाई द इक्वेशन। इसके बाद पार्ट बी था, उसमें क्या गिवन था, नेक्स्ट में आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। तो ये क्वेश्चन सारा उसी तरह है जिस तरह हमने क्लियर Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, कौन पढ़ेगा? Yes, sir. चलिए पढ़े बच्चे, ऊंचा पढ़िए। College retirement. The largest retirement program for college professor in the Teacher Insurance and Annuity Association. College retirement requires fund TIAA CREF on one of the investment option in this program in the CREF money market account, which was initiated in 1988. Figure 2.1988. Figure 2.13 illustrates the performance of this investment during the first 10 quarters of its existence. Note that V is the value of a share unit in this fund and that the data point reflect the end of month values. ठीक है, आगे चलें। It appears that the value of the money market has been increasing at जो चीज इंक्रीजिंग है, एवरी क्वार्टर एवरी टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ शेयर इज गोइंग टू इंक्रीज। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव Sir, positive. positive. पॉजिटिव। अगर ये डिक्रीज होता हर क्वार्टर के साथ तो फिर स्लोप Negative. नेगेटिव। बात क्लियर? आगे चलें। At an approximately linear rate if the data point 611.32. देयर आर टू, बट मैं केस को सिंपल कर। एक प्रोफेसर है, वो कॉलेज से रिटायरमेंट, उसके पास क्या फंड्स हैं,
उसके पास क्या है? Funds. और देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट दोस फंड्स। उनमें से वन ऑफ द ऑप्शन क्या है, गिवन है, जिसमें से हर साल उसकी शेयर की प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का वर्ड आया था ना, एवरी ईयर द शेयर प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली Increasing. Yes, sir. और एक तो वैल्यू ऑफ शेयर है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? टाइम पे। इफ यू लुक एट फिगर नंबर 2.13, व्हाट इज फिगर नंबर 2.13? एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है? टाइम। वाई एक्सिस पे क्या गिवन है? फी। ग्राफ को देखें, लेफ्ट राइट अपवर्ड है या लेफ्ट राइट डाउनवर्ड? अपवर्ड। लेफ्ट राइट Upward. स्लोप इज Positive. पॉजिटिव। स्लोप इज Positive. पॉजिटिव। वैसे भी एक इंक्रीज का वर्ड था या नहीं? था सर। उससे भी हमें क्लियर हुआ कि एवरी क्वार्टर द वैल्यू ऑफ शेयर इज अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीजिंग, तो उससे भी हमें पता चला कि स्लोप इज पॉजिटिव। Positive. स्लोप इज Positive. पॉजिटिव। तो दूसरे में हमें ये कंफर्म हुआ कि इफ वी लुक एट द ग्राफ एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, तो उसमें से ग्राफ क्या है? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। अगर कर्व जो है, लाइन की जो मूवमेंट है या कर्व जो है, इफ इट्स लेफ्ट राइट अपवर्ड, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है हम लोग, तो उसे हम क्या कहेंगे कि जो स्लोप की टाइप्स पढ़ी थी, इफ मूवमेंट इज लेफ्ट राइट अपवर्ड, तो देयर इज पॉजिटिव स्लोप, देयर इज पॉजिटिव स्लोप। एनी कंफ्यूजन? No, sir. ये तो कंफर्म हो गया कि स्लोप विल बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ जाए तो इट मींस कि हमारी जो कैलकुलेशन है दैट इज रॉन्ग। कैलकुलेशन क्या है बच्चों? रॉन्ग। 2 पॉइंट्स आर गिवन, व्हाट आर द पॉइंट्स? क्वार्टर नंबर 6 क्या पॉइंट्स है बच्चे? 6, 11.32. 32 and second point is 9. question number 4 of जी 9. 9 and 12.04. 12.04। चलिए मैंने दो आपको मेथड बता दें, दो चीज़ों से मैं कंफर्म हो गया कि स्लोप विल बी पॉजिटिव। कौन सी दो चीज़ों? एक में क्लियर हुआ कि इट्स शेयर द वैल्यू ऑफ शेयर इज गोइंग टू इंक्रीज। कंफर्म हुआ या नहीं? Yes, sir. दूसरा हमें ग्राफ से भी कंफर्म हुआ। तीसरा हम कहाँ से कंफर्म कर सकते हैं? पॉइंट से। इनपुट इज 6, आउटपुट इज 11.32. इनपुट बड़ा है? Yes, 6 sir. से कितना होगा? 9. आउटपुट 11.32 से बड़ा है? 12.0। तो इनपुट बड़ा, आउटपुट बड़ा, स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप Yes, इज positive. पॉजिटिव। तो तीन चीजों से हमें कंफर्म हुआ कि स्लोप इज पॉजिटिव। Positive. कोई कंफ्यूजन? No, sir. किस पर? No, sir. Yes, sir. पार्ट ए पढ़े हम। व्हाट एक्चुअली वी आर रिक्वायर्ड इन पार्ट ए। नेक्स्ट पेज पे होगा आई थिंक। व्हाट इज पार्ट ए? Determine the slope intercept from of the estimating Determine the equation. slope intercept form of the given points. Okay बच्चों? Yes, sir. So do we have 2 points? Oh, yes, How sir. we can find the slope intercept form? First we are required slope. We can find the slope. What is the formula of slope? M is equals to M is equal to y2 minus y1 y2 minus Y1. y1 divided by x2 minus X1. x1. What is x1? 6. What is y1? 11.32. What is x2? 9. What is y2? 12.04. Can we put these values in this formula? Yes, sir. So, what are the values? 12.04 minus 11.32 divided by 9 minus 9 minus 6 6. So, m is equal to 0.72 divided by 3. 0.72 divided Divided by 3. If we sum these values, so the difference between 12.04 and 11.32 is 0.72. जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इट्स इक्वल टू 0.24। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव? positive अगर किसी का आंसर नेगेटिव आया तो इट मींस Question ये गलत है. कहीं ना कहीं मिस्टेक हो हो गया. एनी कंफ्यूजन? No, sir. क्लियर? Yes, sir. तो इसको हम स्लोप फाइंड कर ली। कैन वी फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? yes sir कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? One वन पॉइंट स्लोप Formula. फार्मूला। व्हाट इज वन पॉइंट स्लोप फार्मूला? y minus y1 y minus y1 Y1 is equal to M m into x minus x1 x minus x1 x1. m into x minus X1. y minus So what is y1? किसी भी पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं।
So y minus 11.32 is 32. equal to 0.24 into x minus 6. X minus 6. y minus 0.11.32 is equal to 0.24x 0.24x minus 1.4 आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या आंसर आता है 1.4। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम आगे इसको मजीद सॉल्व करते हैं, आई थिंक 1.4 आई कैन चेक इन माय मोबाइल। तो आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं इसमें कर लेता हूँ। आप बिजी हैं इसमें वीडियो बनाने में, इसमें बिजी हैं वीडियो बनाने में। 0.24 मल्टीप्लाई बाय 6 is equal to 1.44. 1.44. Yes, I have good memory. So y is equal to 0.24 into x minus 1.44. ये माइनस का इधर आके प्लस, माइनस का इधर आके प्लस 11.32 सुना नहीं, इधर भी नहीं सुना, वीडियो में भी नहीं सुना होता। So y is equal to 0.24x. So sum is equal to 9.88. इनको जब sum लें तो इसका आंसर क्या आएगा 9.88. As I understand, I can check. 1.44 minus 11.32 is 9.88. 9.88. So what is part A? We are required slope intercept form. तो y की जगह क्या लिखेंगे? Look at your book. y की जगह क्या लिखना है? y एक्सिस की जगह क्या लिखेंगे? y एक्सिस की जगह यहाँ पे टाइम लिखेंगे y की जगह V. v लिखा है। और x की जगह T. 0.24 into time 9.88. पार्ट ए में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर ली। व्हाट इज पार्ट बी बच्चे? Identify and interpret the meaning of the slope. Identify and interpret the meaning of slope. What is slope here? Part B लिखते हैं v is equal to 0.24 into t plus 9.88. Is it? Yes sir. What is m here? 0.24 तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो? Every quarter. Quarter. टाइम किस में गिवन है? क्वार्टर में है ना? Yes, sir. मंथ में ईयर में नहीं गिवन। तो क्या कहेंगे? Every quarter the value of share is increased or decreased? value of share is increase कितने से यहाँ पे गिवन है every quarter the value of share is increased by 0.24. $0.24 $0.24। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी? every quarter the value of share is going to decrease is decreasing by $0.24. any confusion? No, sir. clear? Yes, sir. what is part? इसका आगे का पार्ट है पार्ट बी। इसका जो और पार्ट है पार्ट बी में क्या और क्या फर्क है? आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ The slope. No, sir. बस इतना ही था। Yes, what sir. is part C? Part C. Forecast the value per share on June 30, 1991 and March 31, चलिए, part C 1992. को अंडरस्टैंड करते हैं। किसको बच्चों? Part C. part C को अंडरस्टैंड करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर इन जून 1991। दूसरा पार्ट क्या है? इन मार्च 1992। मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, यहाँ समझ लीजिएगा। वैल्यू ऑफ शेयर here is V, here is T, time is in quarter। यहाँ से देखते हैं पहला क्वार्टर कहाँ से शुरू हो रहा है? जून। बुक में देखें, look at your book, June जून 30 1988 1991 1988 क्वार्ट। इसमें देखें ग्राफ में, look at your graph 1979, sir. yes sir 1998 1998। क्वार्टर नंबर 2 कब होगा? चले आपको पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक साल में कितने क्वार्टर? बताओ बच्चों, एक साल में कितने क्वार्टर? झूठ है, 2 साल में क्वार्टर 2 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे?
एक साल में कितने क्वार्टर? एक साल में सर 4 6 सर 4 होते हैं, 3 होते हैं? सर तीन तीन 3 होते हैं 3 होते सर या 4 होते हैं? शायद। तो एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? यार खुद और तो करो, क्वार्टर में नहीं पता आप लोग हैं? सर एक साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। एक क्वार्टर में कितने? 3 months। पहला क्वार्टर कब होगा? एंड ऑफ मार्च, दूसरा एंड ऑफ जून, तीसरा एंड ऑफ सितंबर, चौथा एंड ऑफ दिसंबर। क्वार्टर में कितने मंथ्स? एक क्वार्टर में एक क्वार्टर में 3 मंथ्स। एक साल में कितने क्वार्टर्स? 4 एक साल में कितने क्वार्टर्स? 4 ये बंद हो गया आपका? सर वो कह रहे हैं वो बहुत बना लिए। अच्छा चलो, सो फर्स्ट जून क्वार्टर, सॉरी जून 1988 क्वार्टर 1, उसके क्वार्टर 2 कब है? जून के बाद कौन सा होगा क्वार्टर में? सितंबर 88, 88 उसके बाद दिसंबर 88 3 is December 88 88, then 4 is मार्च 89 89, then 5th quarter is June, 89 then 7th is सितंबर 89 7th is सितंबर 89 जून के बाद सितंबर 89, then 8th is December 89, then 9th is March 90, जून 90 then June, quarter number 10th is June 90, quarter number 11 is सितंबर 90 September 90, quarter number 12 is December 90, एंड ऑफ quarter number 13 is, एंड बुक में तो 10 क्वार्टर हैं, अब हमें फाइंड क्या करना है? जून 30 1991 में शेयर की क्या वैल्यू होगी? एंड किसमें? मार्च 31st 1992, यही दो पार्ट है ना? यस सर। अच्छा दिसंबर की बात क्या है? मार्च, यस सर मार्च 1992 नहीं कोई 19 वैल्यू गलत तो कहीं नहीं लग गया? सर एक नंबर कम लिखा है 6 5 के बाद 7 लिखा है सर। Here is 6, here is 7 7, here is 8, 9, 10 10, 11, 12 12. तो दिसंबर 19, मार्च 91, 91 सर। 13, जून 91, सर ये आपने 4 लिखे, कहाँ पे? मुझे लग रहा है अभी लिखे, लेकिन 90 पे आपने 4 बार लिखा है और 89 भी 4 बार। तो ज़ाहिर है ना? सर यहाँ पे 3 नहीं वो तो पहला क्वार्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जून से। सर उसके बाद हाँ ये अच्छा चले, हमने किस में फाइंड किया? जून 30th 1991। अच्छा देखिए समझ रहे हैं इस बात को। Here is T, here is P. क्वेश्चन क्या है? फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ शेयर इन जून 1991। जून 1991 में T की कितनी वैल्यू है? 30 दो वेरिएबल है, वन इज V सेकंड इज T। तो वैल्यू ऑफ P अगर गिवन हो या T किसी एक की वैल्यू गिवन हो तो दूसरा फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या फाइंड करना है? फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ शेयर इन जून 1991। तो जून 1991 में T कितना है? 13 T is equal to in June 1991, T is equal to 13 what is equation? V is equal to 0.24 T था, यस is सर। it? यस Plus सर। 9.88 कैलकुलेट करो मुझे, कैलकुलेट करो। So V is equal to 0.24, T की जगह क्या आएगा? T की जगह क्या आएगा? 13 plus 9.88, 9.88, 9.88। सर ये 3.12 आएगा। चलिए इसको देखते हैं। V is equal to 3.12 plus 9.88, so V is equal to कितना? 13 डॉलर है क्या कोई और चीज? डॉलर सर। डॉलर। तो इसके अब इंटरप्रेशन क्या होगी? इन जून 1990 जून 30th 1991 the value of share is वैल्यू ऑफ शेयर इज $,
$13. The value of share is $13. 13. इसी का सेकंड पॉइंट है, किसने फाइंड करना है? मार्च March 31st, 1990. 92। तो इसके बाद 13 क्वार्टर के बाद कौन सा क्वार्टर है? 13 के बाद कौन सा आता है? क्वार्टर नंबर 14. 13 के बाद क्या आएगा? क्वार्टर नंबर 14. जून के बाद कौन सा होता है? सितंबर। September. कौन सा? 91। फिर क्वार्टर नंबर 15 कौन सा आएगा? दिसंबर। December. 91। फिर क्वार्टर नंबर 16 March. मार्च। कौन सा? 92. हमने कौन सा फाइंड करना है? March 31 March 92. क्लियर? अगर sir. यहाँ पे होता कि जून 93 फाइंड करें, आगे क्वार्टर हम फाइंड करना है। Yes, sir. तो इन मार्च 1992 व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी? 16. हम इधर लिख सकते हैं इन मार्च 1992 टी इज इक्वल टू 16. Yes sir. टाइम बढ़ा, वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगी कम होगी? स्लो पॉजिटिव। Value of share बढ़ी. 30 से आंसर बढ़ा आएगा। Yes. तो देखते हैं कि v इज इक्वल टू 0.24 इंटू टी प्लस 9.88। सो v इज इक्वल टू 0.24 इंटू 16 प्लस 9.88। कैलकुलेट करना चाहिए 3.84. कितना? 3.84. 3.84 प्लस 9.88। सो v इज इक्वल टू 13.72 डॉलर। 13.72 डॉलर। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? n March 31st, 1992. टू द वैल्यू ऑफ शेयर इज 13.72. वैल्यू ऑफ शेयर इज $30.72। 30. आई थिंक पार्ट सी यही था। पार्ट सी क्या था? यही था सर. यही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? College. College. वो भी सेम इसी सिर्फ opposite है. क्वेश्चन का क्या है? नहीं, कॉलेज रिटायरमेंट कंटिन्यूड। कॉलेज रिटायरमेंट कंटिन्यूड, ग्राफ इसका नहीं है, वो अगले क्वेश्चन का है। कंटिन्यूड तो वो भी इससे मिलता जुलता है, वो आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है उसको समझ के करने की। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ें। अगर क्वेश्चन नंबर 42 को देखें, वो कहते हैं ग्राफ 2.14 इलिस्ट्रेट्स। ग्राफ 2.14, लुक एट ग्राफ, लेफ्ट राइट डाउनवर्ड अपवर्ड। Downward sir. डाउनवर्ड। स्लोप इज Negative. नेगेटिव। स्लोप इज Negative. नेगेटिव। तो इस केस में भी अगर जो है ना नेक्स्ट पेज पे देखें 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट्स आर गिवन। Given. कौन कौन से? 1 and 36.5। 1 and 36.5। सेकंड पॉइंट इज 11.16.5. टाइम पहले 1 था, इनपुट कितना है? 1। आउटपुट कितना है? 11 होगी. आउटपुट कितना है? 36.5. इनपुट बढ़ा, Yes. Yes sir. 1 से कितना हो गया? 11. आउटपुट कम हुआ बढ़ा? बढ़ा है। कम हुआ है. कम हुआ है सर. 36 से कम होगा कितना हो गया? 16.5. तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप इज Negative. स्लोप इज Negative. नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42। Yes sir. तो पॉइंट्स क्या है बच्चों? अगर इसको पढ़ के हम समराइज करें तो पॉइंट्स आर 1 and बताओ बेटे 1 and 36.5. 36.5 11 and second point is 11 and 16.5. 16.5। 5. तो 2 पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें ग्राफ में कंफर्म किया है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, स्लोप इज नेगेटिव। इससे भी पॉइंट से भी कंफर्म हो सकता है इफ इनपुट पहले 1 है, इनपुट इज इंक्रीज्ड बट आउटपुट इज डिक्रीज्ड। आउटपुट इज डिक्रीज्ड। देयर इज इनवर्स रिलेशन m फाइंड कर लेंगे, उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, m को इंटरप्रेट कर लेंगे। सारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसी तरह है। आई थिंक ये यहाँ तक आप कर लें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हम कल इसको मैनेज करेंगे, टाइम हम अभी कंफर्म कर लेते हैं उसमें क्या करना है। उसमें हम चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 3.1 को देखेंगे। तो बाकी ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट करनी है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें, या इन 2 स्टूडेंट्स से या बाकी जो सेक्शंस के स्टूडेंट हैं उनसे आप डिस्कस करके अपना वो जो असाइनमेंट है कंप्लीट करें और इसको कंपाइल करें, सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। ओके। Okay sir.